very important things that you need to know about NMAT. तो मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपका कोई भी इनमें से एक रीज़न हो सकता है, मोर देन वन रीज़न हो सकते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज यू कैन प्रीव्यू योर स्कोर इंस्टेंटली। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आप अपना स्कोर प्रीव्यू कर सकते हो। एंड पैराफॉर्मिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन, प्रेपोजिशंस, सेंटेंस कंप्लीशन एंड एनालॉजीज, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दिस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि नॉट ओनली फॉर कैट बट आई विल बी हेल्पिंग यू फॉर एवरी अदर एग्जामिनेशन विच विल टेक यू टू सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर MBA in the country. Now, after CAT, the next exam that we are going to talk about will be Narsi Munji Aptitude Test, that is NMAT. Now, in this session, I'll be covering each and everything, very important things that you need to know about NMAT. तो मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। सो जो रेलेवेंट चीजें आपको जाननी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स हैं in the lectures. I get to talk to those students, so they are a bit apprehensive about NMAT कि भाई हमें NMAT एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी डाउट है कि हमें NMAT देना चाहिए या फिर नहीं, तो मैंने उसके लिए भी आपके लिए रीजंस तैयार किए हैं। सो आई विल बी giving you proper reasons of why a student should be attempting NMAT exam, and will be also telling you all the complete details including important dates, the procedure, the NMAT syllabus, the pattern of the exam, and the list of colleges which accept NMAT score. So let's start with the discussion. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एग्जाम देना क्यों जरूरी है। Okay, why this is an important exam to appear for? So there are plenty of reasons. आपका कोई भी इनमें से एक रीजन हो सकता है, more than one reason हो सकते हैं। So the first reason is the top colleges which accept NMAT score. Okay, now I'll be giving you a complete list, but let me tell you first of all, NMAT का जो score है, NMAT first of all it is conducted by Narsi Munji Institute of Management Studies. Okay, so obviously the score is considered by NMIMS. So NMIMS is the first college that accepts this score. Now NMIMS has different campuses. तो जो इनका मुंबई कैंपस है, that is a wonderful campus. Other than Mumbai campus, they have a campus in Bangalore, Hyderabad, and Indore, Navi Mumbai. So बहुत सारे campuses हैं. So this exam gives you plenty of options. Now not only Narsi Munji Institute of Management Study, but KJ Somaiya, SP Jain, देन GLIM, सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो NMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 colleges after some time. Now the next reason is, other than the number of colleges, the good colleges that accept this score, we have a flexibility using which we can select the date, the time, as well as the location of the exam. So some of the students they feel that they are not prepared at a particular date. So जैसे CAT का एग्जाम 29th of November को है, फिक्स्ड डेट है, so हम उसको चेंज नहीं कर सकते। But NMAT gives you a flexibility of selecting your own date of the examination. आप एग्जाम का टाइम डिसाइड कर सकते हो एंड आप अपना टेस्ट सेंटर खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। The next reason is NMAT का एग्जाम आप सिर्फ एक नहीं 3 बार दे सकते हो। सो आपने अगर एक बार एग्जाम दिया एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्कोर, देन यू कैन गो फॉर अ रीटेस्ट द सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट से भी आप खुश नहीं हो, सो एज मेनी एज 3 अटेम्प्ट्स कैन बी गिवन इन द सेम एकेडमिक ईयर इन द टेस्टिंग विंडो दैट इज डिसाइडेड बाय NMAT। तो टेस्टिंग विंडो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज you can choose the section order. Okay, so there are 3 sections I'll be telling you. So quantitative aptitude, verbal ability and logical reasoning, ये 3 common sections हैं and आप इन sections का अपने आप से order भी select कर सकते हो at the beginning of the exam. The next reason is there is no negative marking. कैट में नेगेटिव मार्किंग होती है, जैट में नेगेटिव मार्किंग होती है, मोस्टली जो भी हम एग्जाम देते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है, बट दिस एग्जाम डज नॉट हैव अ नेगेटिव मार्किंग।
तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शन ऑर्डर हम खुद से चूज कर सकते हैं, हम रीटेक भी दे सकते हैं इफ यू आर नॉट हैप्पी विद आवर स्कोर. सो दीज आई बिलीव आर enough reasons for us to appear for NMAT, and the topmost reason is the colleges which accept this score. Now further, the more reasons, you can preview your score instantly. जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है आप अपना स्कोर प्रीव्यू कर सकते हो, and on the basis of that you can decide if you want to appear for a retest or not. ओके, कैट का जो स्कोर है वो काफी दिन बाद आता है, हमें बाद में पता चलता है, बट यहाँ पे इस टेस्ट का स्कोर आप जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है आप अपना रॉ स्कोर देख सकते हो, एंड विद इन 48 आवर्स यू कैन डाउनलोड योर स्कोर कार्ड. ओके राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है. यू कैन मैच द स्कोर दैट यू हैव ऑब्टेन्ड विद द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स एंड डिसाइड कर सकते हैं कि हमें दोबारा से एग्जाम देना है या फिर नहीं. Also, the next thing is you can choose NMAT accepting colleges to send your scores. तो आपके हाथ में है, आपकी मर्जी, आप कौन कौन से कॉलेजेस में अपना स्कोर भेजना चाहते हो. ठीक है, सो NMAT की जो फीस होती है, इन दैट फीस दे अलाउ you to select 5 colleges in which you can send your score in the same fee which you have paid for NMAT. ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, आप 5 कॉलेजेस में अपना स्कोर सेंड कर सकते हो. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सेंड योर स्कोर टू मोर कॉलेजेस, तो एवरी कॉलेज के लिए आपको एक नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है, एंड you will be able to send your scores to those colleges as well, right? So friends, these are all the reasons why you should appear for NMAT. Now let's understand the NMAT exam structure. Exam किस form में आएगा? Okay, so first of all, it will be divided in 3 sections: language skills, quantitative skills, and logical reasoning. So these are the 3 sections. Okay, now I'll be telling you what will be covered under each of these sections, what will be the syllabus that you'll have to prepare for. But some important things. So the entire exam is divided in 3 different sections having 36 questions each, right? Now language skills, 36 questions, you'll be given a total of 28 minutes, right? And the score range will be starting from 12 up till 120. Now these are the scaled scores that we receive in the NMAT. So NMAT में जो scaled scores होते हैं, they will depend on the level of difficulty of the slot that you are given. तो अब सिंपल सी बात है यार, कैट में भी हमें scaled score मिलते हैं ना, तो कोई भी एग्जाम जो मल्टीपल स्लॉट्स में होगा, सो डेफिनेटली लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जैक्टली सेम तो नहीं रख सकते, तो इसीलिए स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है. ओके, एंड आपका जो भी स्कोर होगा उसका रेंज मिनिमम 12 एंड मैक्सिमम 120 होगा. ओके, तो अब आप बोलोगे कि सर 36 क्वेश्चंस तो 120 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, बिकॉज 120 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 36. सो ये स्केल्ड स्कोर्स होते हैं, डू नॉट वरी एट ऑल, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये प्री डिटरमाइंड होती है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन स्लॉट दैट यू हैव. ओके, so language skills 36 questions to be completed in 28 minutes, score range 12 से लेके 120. Next section is quantitative skills, 36 questions once again, and 52 minutes will be given to you. So they understand कि quant के 36 questions करने में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, verbal के ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं जिनको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. So that is why the difference in the time limit. The third section, logical reasoning, having 36 questions and the time given to you is 40 minutes. Now each of these sections, the scale score will lie in the range of 12 to 120. तो अगर हम टोटल की बात करें, दो टोटल हमें देखना नहीं चाहिए बिकॉज सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ पे. Still a total of 108 questions will be there in NMAT, and the total time given to this exam is 120 minutes, and the net score, the total score will lie in the range of 36 up till 360. All right, now one very important thing that you need to know, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत सारी लाइक मार्केट में न्यूज फैली होती है कि ये कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट है, जैसा जीमैट होता है ना, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट. दैट मीन्स एक क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने सही कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर मैंने गलत अटेम्प्ट किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा. नहीं, दिस इज नॉट द केस विद NMAT. तो NMAT एक नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट है जिसमें आपके स्लॉट में जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से ही सिलेक्टेड है। तो आपकी उस टाइम की परफॉर्मेंस जो होगी वो डिसाइड नहीं करेगी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो फिक्स्ड है। दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये जो 3 सेक्शंस हैं इनका जो भी ऑर्डर है, आप अपना एग्जाम जब भी स्टार्ट कर रहे हो आप अपने हिसाब से इनका ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। बट एक बार आपने फिक्स कर दिया तो आप उस ऑर्डर को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो एग्जाम जस्ट स्टार्ट होने से पहले जब आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहे होते हो तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से ऑर्डर में ये 3 सेक्शंस चाहिए। माय प्रेफरेंस विल बी, जैसा कैट में होता है ना, कैट में क्या होता है, तो हम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट की मॉक टेस्ट सीरीज में अपीयर करते हैं। ओके, सो वी आर प्रोग्राम्ड इन दैट वे। तो आपको क्या करना चाहिए, लाइक दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, माय सजेशन, रेस्ट टोटली लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज स्किल्स, सेकेंड सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग एंड द थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव स्किल्स। अब आप लोग सोचोगे कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं है, कैट में तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पेशेंस रखो। So next thing is a syllabus of NMAT. So let's talk about each of these 3 sections one by one. Language skills will be comprised of reading comprehension, paraforming, error identification, prepositions, sentence completion and analogies. Now ये जो भी information मैं आपको provide कर रहा हूँ, this I have taken from the official website of NMAT. ठीक है ना, तो मैं अपनी मन से नहीं बना रहा हूँ ये सब चीजें, ये official website पे भी लिखा हुआ है। Now logical reasoning में there will be 2 separate types of reasonings, right? So verbal reasoning, verbal based reasoning and quant based reasoning. So verbal based reasoning में आपका क्या आ जाता है, critical reasoning, analytical puzzles, deductions and so on. And quantitative based skills, इसमें क्या क्या आ जाएगा, series, decoding, coding, right? And blood relations, Venn diagrams, direction senses, clocks, कैलेंडर्स, अरेंजमेंट्स में लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, देन इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको लॉजिकल रीजनिंग में मिलेंगे। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन, क्वांटिटेटिव स्किल्स, व्हिच विल हैव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम्स, राइट? सो ये कॉमन चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम एंड data interpretation, data integration, caselets tables, data integration in graphs and charts, and data sufficiency as well will be the part of quantitative skills. All right, so this is the entire syllabus or what you can expect in the exam. Now moving on to the next thing, a very important thing, important dates. अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज एनमैट का एग्जाम सिर्फ एक दिन नहीं होता, इट इज स्प्रेड अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 50 days, जहां पे आप सिर्फ एक बार एग्जाम नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले एनमैट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपको जाके एक फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ओके, एंड आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के लिए द स्टार्ट डेट इज 20th of August 2026, राइट? 20th अगस्त से 10th of October तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, तो इस विंडो में, इस ड्यूरेशन में आप कभी भी जाके एनमैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो एंड फी पे कर सकते हो। ओके, नाउ शेड्यूलिंग ऑफ द एग्जाम। अब क्योंकि एनमैट की डेट फिक्स्ड नहीं है, एक दिन नहीं होता, और एनमैट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी एग्जाम डेट खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। तो शेड्यूलिंग ऑफ द एग्जाम के लिए आपको टाइम कब से कब तक का मिलेगा, 20th अगस्त से स्टार्ट करके 22nd अक्टूबर तक आप अपना एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है आपको, इन डेट्स में आप अपना एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने टेस्ट विंडो नहीं बताया कि टेस्ट कब कब होगा। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम के लिए जो शेड्यूल करना है एग्जाम, वो आप 20th अगस्त से लेके 22nd अक्टूबर के बीच में कभी भी अपना एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब शेड्यूल
जो होगा वो उनकी डेट्स क्या होंगी, एग्जाम की डेट्स क्या होंगी, अभी रीशेड्यूलिंग में नहीं बता रहा। सो एग्जाम डिलीवरी डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 नवंबर टिल 20 दिसंबर। तो 2 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक की डेट्स आपके पास अवेलेबल होंगी, जिनमें से किसी भी एक डेट पे आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पहला एग्जाम जो है 2 नवंबर को शेड्यूल कर दिया, ठीक है। हाँ, आप 2 नवंबर को गए एग्जाम देने, आपने एग्जाम दिया, 2 दिन बाद आपका स्कोर कार्ड आ गया एंड यू थिंक कि आप और इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप अपना एग्जाम रीशेड्यूल कराओगे, ठीक है। रीशेड्यूल नहीं कराओगे, आप रीटेक के लिए रजिस्टर करोगे, ठीक है। सो रीशेड्यूलिंग एंड रीटेक दो डिफरेंट चीजें हैं, ये भी ध्यान से समझना। तो सबसे पहले शेड्यूलिंग के लिए जो विंडो है 20 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो, और एग्जाम डिलीवरी डेट्स क्या है, 2 नवंबर से 20 दिसंबर तक, ठीक है। आपने 2 नवंबर सेलेक्ट किया, आपका स्कोर कार्ड आ गया 2 नवंबर के बाद 2 दिन में, ठीक है। एंड आपको लगा कि आपको एक और बार एग्जाम देना चाहिए, सो दैट मीन्स यू विल बी गोइंग फॉर रीटेक ऑफ दिस एग्जाम। तो रीटेक के लिए अब फिर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी, ओके। सो रीटेक के लिए आप रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करा सकते हो, 3 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एंड रीटेक के लिए आपको एग्जाम को शेड्यूल करना पड़ेगा, तो आप वो शेड्यूलिंग कब से कब तक कर सकते हो, 3 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक, राइट। So this is it about the entire exam. Now हमने एक एग्जाम शेड्यूल किया, बट हम किसी रीजन की वजह से उस एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे, ये हमें पहले से पता लग गया। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं। तो रीशेड्यूलिंग ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन। लेट्स से मैंने 10 नवंबर को एग्जाम शेड्यूल कर लिया है, राइट। 10 नवंबर के लिए मैंने शेड्यूल कर लिया है ऑलरेडी, बट मेरे को कुछ दिन पहले पता लगता है कि यार 10 नवंबर को मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, सो आई विल हैव टू रीशेड्यूल माय एग्जाम। सो रीशेड्यूलिंग कैन बी डन इन दिस विंडो, 20 अगस्त से लेके 17 दिसंबर तक आप कभी भी रीशेड्यूल कर सकते हो, बट वो एग्जाम से पहले होना चाहिए, एग्जाम के बाद नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट एनमैट इंपॉर्टेंट डेट्स, ओके, ठीक है। अब आप ये वाला एग्जाम मैक्सिमम 3 बार दे सकते हो, बट हर अटेम्प्ट के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको दोबारा से फी पे करना पड़ेगा, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फी फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। तो एक बार जान लेते हैं। तो टेस्ट रजिस्ट्रेशन जो भी होगा, मतलब एक बार अटेम्प्ट करने की फीस है 3000 रुपीज प्लस टैक्सेस, ठीक है। आप दोबारा से अपीयर करना चाहते हो, एक टेस्ट आपको सेटिस्फैक्टरी स्कोर नहीं मिला, तो आप दोबारा से अपीयर करना चाहते हो, तो आपको दोबारा से 3000 रुपीज एंड टैक्सेस पे करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। हो गई ये चीज। अब अगर आप अपना एग्जाम रीशेड्यूल करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि 10 नवंबर को हमने एग्जाम शेड्यूल किया, बट किसी रीजन की वजह से हमें पता चला कि हम नहीं दे पाएंगे एग्जाम, तो अब हम सेम एग्जाम को रीशेड्यूल करना चाहते हैं, तो आपको 3000 रुपीज दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा। रीशेड्यूलिंग का जो कॉस्ट है दैट इज 1200 रुपीज प्लस टैक्सेस, ठीक है। हाँ, तो रीशेड्यूलिंग फ्री में नहीं है, यहाँ पे 1200 रुपए लगेंगे और टैक्सेस भी लगेंगे, राइट। नाउ जैसा मैंने आपको एक और चीज बताया था कि एनमैट का स्कोर आप 5 कॉलेजेस में सेंड कर सकते हो, बट आपको मोर देन 5 कॉलेजेस में सेंड करना है, तो एडिशनल स्कोर रिपोर्ट बियॉन्ड द फर्स्ट 5, ठीक है ना, पहले 5 कॉलेजेस में आपका फ्री में चला जाएगा स्कोर, बट इसके अलावा आपको किसी भी कॉलेज में अगर अपना स्कोर सेंड करना है तो 400 पर स्कोर रिपोर्ट प्लस टैक्सेस, तो 400 रुपीज पर कॉलेजेस नॉमिनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर स्कोर रिपोर्टिंग बियॉन्ड द फर्स्ट 5 कॉलेजेस। डन। सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर, राइट। नाउ नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनमैट एक्सेप्टिंग कॉलेजेस. So let's talk about these colleges. So this is the list of top 10 colleges, and there are a total of 56 colleges that accept NMAT score. Now, अगर आप official website पे देखोगे, you will see 56 names in this entire list, but the number of colleges is actually more than 56. For example, अगर आप सबसे पहला नाम देखोगे
Narsi Munji Institute of Management Studies. Now, this is one college, but it has multiple campuses. Okay, so हर एक कैंपस को अलग से काउंट करते हैं अगर हम, तो this list will be more than 56 colleges. Okay, so Narsi Munji Institute of Management Studies, the topmost college, Mumbai campus, Bangalore, Hyderabad, Navi Mumbai, right? So multiple campuses हैं इस कॉलेज के. सो टॉप कॉलेज, टॉप कैंपस जो है वो डेफिनेटली मुंबई कैंपस है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज केजे सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. नाउ दिस इज आल्सो इन मुंबई एंड वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. आईएसबी हैदराबाद. ना आईएसबी हैदराबाद भी इस एग्जाम के थ्रू एडमिशंस लेता है, बट फॉर नॉट ऑल द प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट आईएसबी. तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, Advanced Management Program in Business Analytics, which is offered at both the campuses of ISB, Hyderabad as well as Mohali campus. So ISB के दो campus हैं, Hyderabad, Mohali. So this particular program, right? This particular program accepts NMAT scores as well. ठीक है? ऐसे colleges होते हैं जो multiple scores accept करते हैं. ठीक है? जैसे ISB is famous college which accepts GMAT scores. बट एनमैट के स्कोर भी एक्सेप्ट करता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. नेक्स्ट इज एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, रेनाउंड कॉलेज. बट वंस अगेन एसपी जैन सारे प्रोग्राम्स के लिए एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है. नाउ नंबर 5 इज एक्साइएम यूनिवर्सिटी, एक्साइएम which is in Bhubaneswar. Okay, so this also accepts NMAT score, but once again not for its business management program, BM जो program है उसके लिए accept नहीं करता, but for other programs like human resources, and there are plenty of programs offered at XIM Bhubaneswar, तो उनके लिए ये NMAT के scores accept करता है. Great Lakes Institute of Management, TAPME, SDA Bocconi का एशिया सेंटर जो इंडिया में है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जिसका एक कैंपस दिल्ली में है, ICFI बिजनेस स्कूल विच इज इन हैदराबाद एंड हैज डिफरेंट कैंपसेस. So these are some top colleges which accept NMAT score. Complete list is like a big list of 56 names. All right. Now, next thing is how should we prepare for this exam? क्या-क्या resources हम use कर सकते हैं? So there are some resources which are provided to you by us. And there are some resources which are provided to you by GMAC. GMAC is the authority that conducts NMAT exam. Official जो partner है GMAC, वो NMAT का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो भी कुछ कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास टोटल. सो PW की क्लासेस हैं, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो विच हेल्प्स यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैट एज वेल एज अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. राइट, सो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो PW के. नेक्स्ट इज एनमैट एक ऑफिशियल गाइड प्रोवाइड करता है जो आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन. ठीक है, देन PW की अपनी एक मॉक टेस्ट सीरीज है कैट्स एंड ओमेट्स के लिए. ठीक है, तो कैट एंड ओमेट्स यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. ठीक, आप वो भी कर सकते हो. देन वन फ्री एग्जाम प्रिपरेशन इज गिवन टू यू विद 2 अटेम्प्ट्स. सेम एग्जाम को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ये अगेन बाय GMAC. तो जैसे ऑफिशियल गाइड थी वो GMAC प्रोवाइड कर रही है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक फ्री टेस्ट आपको GMAC प्रोवाइड कर रहा है. ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग यू 2 पेड एग्जाम्स. ठीक है ना, each with 2 attempts. This is also provided to you by GMAC. Okay, so this is the complete set of resources that you can utilize to prepare for NMAT exam, right? So my dear friends, at the end I would tell you that NMAT exam is once again a very important exam. Important because first of all, the reasons that I have given you, definitely I have given you enough of reasons at the beginning of this session, and I would say that the reason that I have not given you at the beginning is there should always be plan B. So let's say there is a student who don't want to go to NMIMS college because he or she thinks that like you want to stay among top 5, top 10 colleges of the country. Fine, कोई problem नहीं है अगर आपकी ये thinking है, but NMAT के through NMIMS में अगर आपको admission मिलता है, so NMIMS is also among
top 15 to 20 colleges of the country. ओके अच्छा कॉलेज है, इसकी लोकेशन मुंबई है, तो मुंबई इज द हब फॉर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, राइट? नवी मुंबई में है, पुणे में है, सो इट इज वेरी क्लोजर टू द इंडस्ट्री. सो जो आपके प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं इफ यू आर एंटरिंग दिस पर्टिकुलर कॉलेज, राइट? नाउ फीस अगर बात करता हूं तो फीस इसकी कंपेरेबल है विद ऑल द अदर IIMs, एंड I would still rate NMIMS Mumbai campus above some of the IIMs. ये जो एकदम लास्ट में नए नए IIMs आए हैं ना, ठीक है, they have a brand name, IIMs का brand name है, but yes, NMIMS being a reputed, a very old college belonging to a wonderful university, so it can be rated among some of the baby IIMs जो एकदम लेटेस्ट वाले जो IIMs है ना, उनके ऊपर हम इनको रेट कर सकते हैं, right? So because of the quality of education, because of the quality of internships and the placements provided by NMIMS Mumbai campus, I would say that this, if not the first priority, can become your plan B while you are preparing for all these exams. तो हमेशा एक plan B होना चाहिए. So friends, on this note, I'll leave you here, and again, I promise you that I'll bring some more information about NMIMS. NMIMS जो कॉलेज है उसके बारे में भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, राइट? अभी मैंने वेबसाइट पे देखा था तो not enough amount of information is given, though the registrations have started, but जो information brochure है वो इनका अभी भी पुराने वाला अपलोडेड है. So I'll make some more sessions educating you about different colleges and different exams. Till then, enjoy.